Good morning, dear students. Now, in this lecture, we are going to discuss Boolean algebra. Boolean algebra specifies the relationship between Boolean variables, and these Boolean variables used to design combinational circuits. In digital computer, true value represented by 1, or we can call it high voltage, and false is represented by 0, that is called low voltage. Logical operations are performed by the logic operators. Three basic logic operators are there. They are AND, OR, third is NOT. So first logic operator is AND operator. What AND operator does? It performs logical multiplication and it is denoted by dot. For example, we have two variables x and y, and the product of and operation of this is z. So z is equals to x dot y. It is also shown by the truth table. In truth table, different combination of these variables are there. First is 0, x is 0, y is 0. In this case, the product or multiplication will be 0. Second case, when x is 0, y is 1, the product will be 0. Third case, when x is 1, y is 0, the product z will be 0. Last case, when x and y both are 1, the product is 1. Second operator is OR operator. OR operation performs logical addition. ठीक है, we can say AND operator is used as logical multiplication, whereas OR operator is used, we are going to use here for logical addition. It is denoted by plus sign. Again, we have two variables x and y. So the output or function of x and y will be z equals to x plus y. इसको हम और पढ़ते हैं x और y. Through this truth table, two variables x and y, and third column is z is equals to x or y. When x is 0, y is 0, OR operation will be 0. When x is 0, y is 1, OR operation will be 1. Third case, when x is 1, y is 0, OR operation is 1. But look at the last case, when both the variables are high, 1. In this case, the logical addition will be 1. ठीक है, इसमें हम 1 0 नहीं लेंगे जैसा हम बाइनरी एडिशन में लेते हैं. हमें यहाँ पे कैरी या वैसा नहीं लेना है, हमें 1 या 0 के फॉर्म में ही लेते हैं इसमें. तो जब भी हम OR ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, in OR operation and both the variables are high, output is high. Third is NOT operator. Third type of operator, NOT operator. It performs logical negation and it is denoted by bar sign, or we can also use dash.
it operates on single variable. यहाँ पे हम इसको जैसे मेरे पास एक x वेरिएबल है, इसका मुझे नॉट फंक्शन लिखना है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर हम, ठीक है, या हम इसको, ये तो क्या हटा दो, x डैश भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वी कैन यूज़ बार, वी कैन यूज़ डैश ऑल्सो। तो x, one single variable is there, the value of x can be 0 or 1, right? So the logical not operation is z equals to x bar. If x is 0, z will be 1. If x is 1, z will be 0. Next is basic rules of Boolean algebra. These are some laws and theorems which we use to simplify the Boolean functions. First is identity. Check this table. I have already discussed three types of operator, and, or, and not. What we are using here, you can see the law of addition, law of multiplication. So both the AND operator and OR operator we are using here. So first law is identity law. Identity law में देखें, when x plus 0 is there, it is equal to x. But same law in multiplication, we can write x dot 1 is equals to x. In complement law, x plus x dash is equals to 1. यहाँ पे अगर मैं डैश यूज़ करूँ या बार यूज़ करूँ किसी भी वेरिएबल पे, इट मीन्स वहाँ पे नॉट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या बोलता है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ एडिशन, इट विल बी x प्लस x डैश इज इक्वल्स टू 1, एंड फॉर मल्टीप्लिकेशन लॉ इट विल बी x dot x dash is equals to 0. Third law, x plus x is equals to x. Again x dot x is also equals to x. Fourth case, x plus 1 equals to 1, x dot 0 is equals to 0. फिफ्थ इज इन्वॉल्यूशन लॉ, जिसमें हम किसी भी वेरिएबल पे 2 टाइम्स बार यूज़ करें या 2 टाइम डैश यूज़ करें, अगेन हमें वही वेरिएबल मिलेगा. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेरिएबल है x, वी हैव परफॉर्म द नॉट ऑपरेशन वंस, देन इट विल बिकम x डैश. अब अगेन इस x डैश पे हम एक बार और नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करें तो ये वापस से क्या बन जाएगा, x बन जाएगा. ठीक है, तो x पे डबल डैश यूज़ किया है, इट विल इक्वल टू x. नाउ दिस 5 laws are very important. First is commutative law. X plus y is equals to y plus x. इसी का लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन आप देखें तो x डॉट वाई इज इक्वल्स टू वाई डॉट एक्स. लॉ ऑफ एडिशन और लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन एग्जैक्टली यहाँ पे होता क्या है, बुलियन अलजेब्रा में एवरी टाइम 2 पेयर्स में लॉज होते हैं. ठीक है, 1 फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड 1 फॉर एडिशन. ठीक है, एक डॉट शो करता है और एक प्लस ऑपरेटर शो करता है. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये एग्जैक्टली एक दूसरे के, हम एक अगर हमारे पास है, फॉर एग्जांपल वी हैव लॉ ऑफ एडिशन ओनली,
So we can find out law of multiplication for the same theorem or same law. वो कैसे? वो ये होता है, उसमें हम एक प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, जब हम प्लस साइन को डॉट में कन्वर्ट कर देते हैं और वी रिप्लेस एवरी वन विथ ज़ीरो एंड ज़ीरो विथ वन. ठीक है, तो प्लस को रिप्लेस करेंगे, मतलब इंटरचेंज कर देते हैं हम. प्लस है तो हम डॉट कर देंगे, डॉट है तो प्लस कर देंगे. सिमिलरली वन है तो ज़ीरो कर देंगे, ज़ीरो है तो वन कर देंगे. तो कम्यूटेटिव लॉ कहता है x प्लस वाई इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स. इसी का जो दूसरा सेट है दैट इज x डॉट वाई इज इक्वल्स टू वाई डॉट एक्स. नेक्स्ट इज एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ है x प्लस in brackets y plus z is equals to x plus y in bracket है x plus y plus z. तो ये एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग हम ऑर्डर चेंज कर दें तो भी उस पर्टिकुलर फंक्शन की वैल्यू सेम होगी. ठीक है, इसी का मल्टीप्लिकेशन लॉ होता है x डॉट वाई डॉट जेड इज इक्वल्स टू x डॉट वाई डॉट जेड. Next is distributive law. Distributive law is x dot y plus z. ये सिंपल है. ठीक है, इसका लेफ्ट हैंड साइड आप देखिए x डॉट वाई प्लस जेड है. अगर हम इसको ओपन कर दें, ठीक है, इसका प्रोडक्ट कर लें तो इट विल बिकम x डॉट वाई प्लस एक्स डॉट जेड. अब मैंने आपको बताया कि हम डॉट की जगह प्लस साइन यूज़ कर लें और प्लस की जगह डॉट साइन यूज़ कर लें तो हमारा सेकंड लॉ निकल के आ जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे x था, मैंने x लिखा. डॉट था तो डॉट की जगह हमें क्या लिखना होगा? प्लस लिखना होगा, तो हमने प्लस लिखा. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? y है, y लिखा. प्लस साइन था, हमने डॉट यूज़ किया, तो y डॉट जेड. ठीक है, अब हम लॉ, ये मैं कैसे बता रही हूँ, लॉ ऑफ एडिशन में मैं डॉट की जगह पे प्लस लगा रही हूँ, प्लस पे डॉट लगा रही हूँ, तो लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन बन रहा है. अब इसका हम राइट हैंड साइड देखें. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x डॉट वाई था तो हमने x प्लस वाई लिख लिया, और इन दोनों के x डॉट वाई के बाद क्या था? प्लस साइन था, तो हमने वहाँ पे क्या लगा लिया? डॉट लगा लिया. ये सिमिलरली यहाँ पे x डॉट जेड था, हमने इसको x प्लस जेड लिख लिया. नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन लॉ. एब्जॉर्प्शन लॉ इज x प्लस एक्स डॉट वाई इज इक्वल्स टू x. अगेन इसमें भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा x डॉट एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू x. We have already discussed this. नेक्स्ट इज डुअलिटी प्रिंसिपल इन बुलियन अलजेब्रा. डुअलिटी प्रिंसिपल वही है जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया है. तो डुअलिटी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द डुअल ऑफ द एक्सप्रेशन कैन बी अचीव्ड बाय रिप्लेसिंग द एंड ऑपरेटर विथ और ऑपरेटर along with replacing the binary variables. Replace 1 with 0 and 0 with 1. This law explains that replacing the variable doesn't change the value of Boolean function. For example, if we have Boolean equation, like a plus b equal to 0. इसमें हमें जब भी डुअलिटी प्रिंसिपल अप्लाई करना है तो क्या ध्यान रखना है? प्लस और डॉट रिप्लेस हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे. सिमिलरली 1 और 0 भी रिप्लेस होंगे. ठीक है, तो a प्लस b था तो हम इसको क्या लिखेंगे? a डॉट b. ठीक है, इक्वल टू में क्या था? 0 था, तो हम 0 को क्या लिख लेंगे? 1. ठीक है, तो हमारा एंड ऑपरेशन क्या निकल के आ गया? a डॉट b इक्वल टू 1. As per duality principle, if a, b are two variable, then both the equation a plus b equal to 0 and
A dot B equals to 1 are true इन केस ऑफ सेम लॉजिक सर्किट। ठीक है, हम एक पर्टिकुलर कोई लॉजिक सर्किट बना रहे हैं, उस लॉजिक सर्किट के लिए हम दोनों इक्वेशन को ट्रू बोलेंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशन उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब हम वापस से एक बार यहाँ पे एक बार और देख लें। जैसे ये वाला मेरा जैसे फर्स्ट वाला था। ठीक है, तो फर्स्ट वाला मेरा थ्योरम क्या था, आइडेंटिटी लॉ था x प्लस 0 इक्वल्स टू एक्स। तो देखो अब हमने क्या करा, यहाँ पे हमने डुअलिटी अप्लाई किया तो मल्टीप्लिकेशन लॉ बन गया। ठीक है, तो x फिर प्लस था, मैंने डॉट लगाया, 0 था, मैंने यहाँ पे 1 लगाया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड एडिशन साइड में क्या था, x प्लस 0, तो मल्टीप्लिकेशन लॉ में हमने क्या बनाया उसको x डॉट 1 इक्वल टू में दोनों x थे तो यहाँ पे x आ गया। सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट लॉ देखें आप, x प्लस एक्स डैश इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये वाला x प्लस एक्स डैश इक्वल टू 1, तो हमने इसको क्या कर दिया, प्लस की जगह हमने डॉट लगा दिया, तो ये मेरा बन गया x डॉट एक्स डैश इक्वल टू, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, 0। तो इस तरह से वी कैन अप्लाई डुअलिटी प्रिंसिपल इन बुलियन अलजेब्रा। नेक्स्ट इज डी मॉर्गन थ्योरम। De Morgan theorem, this law works depending on the concept of duality. De Morgan proposed two theorems. In statement 1, it says the complement of product of two variable is equal to the sum of complement. ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ देखें, ये हमारी जो पहला वाला जो हमारा इक्वेशन है क्या है, ये वाला हम क्या कर रहे हैं, दो वेरिएबल का प्रोडक्ट करके उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो किसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो a प्लस बी डैश इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू किसका सम कर रहे हैं हम, इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट का हम सम कर रहे हैं, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल्स। तो पहला स्टेटमेंट ये था, इससे हमारी ये वाली इक्वेशन निकल के आती है, ए बी डैश इक्वल्स टू ए डैश प्लस बी डैश। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 2 जो है, इट सेज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सम ऑफ टू वेरिएबल्स, complement of the sum of two variable is equal to the product of the complement of each variable। ठीक है, तो हमें कैसे याद रखना है इस इक्वेशन को, कि पहले वाले केस में हम प्रोडक्ट करा के उसके ऊपर एक बार यूज़ कर रहे हैं और राइट हैंड साइड में वही चीज़ सेपरेट हो जा रही है। ठीक है, वहाँ पे प्लस साइन आ जा रहा है और हर एक वेरिएबल के ऊपर सेपरेट बार यूज़ होगा। सिमिलरली सेकेंड स्टेटमेंट में देखें हम, तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम ऑफ टू वेरिएबल इज इक्वल टू इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच वेरिएबल। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ए प्लस बी डैश, ठीक है, ये है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में हमारा क्या आ जाएगा, इंडिविजुअल हम ए डैश बी डैश लेंगे और उनका प्रोडक्ट करा देंगे। In exam, there is a question to prove the De Morgan theorem. So how to prove this De Morgan theorem? We can prove this De Morgan theorem using the truth table. Truth table, A B, पहले हम दोनों सेट्स हमको सॉल्व करने पड़ेंगे। दो स्टेटमेंट थे तो दोनों स्टेटमेंट को हमें सेपरेट प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट था हमारा ए बी होल डैश इक्वल्स टू ए डैश प्लस बी डैश। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है हमारा ये वाला। तो अब हमें क्या लेना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से प्रूफ कराना है। तो हमें क्या क्या कॉलम्स रिक्वायर्ड है यहाँ पे हम देख लेते हैं। पहला कॉलम हमारे दो वेरिएबल्स हैं, वी हैव टू वेरिएबल्स ए एंड बी, तो हमने लिखा यहाँ पे ए, यहाँ लिखा बी।
नेक्स्ट हमें और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ए डैश हमें चाहिए, बी डैश हमें चाहिए, हमने यहाँ लिख लिया है डैश बी डैश। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमें चाहिए ए डॉट बी चाहिए, हमने ए डॉट बी ले लिया, सॉरी ए डॉट बी का डैश चाहिए तो हमने ए बी डैश निकल लिया। सिमिलरली राइट हैंड साइड में हमें अब क्या चाहिए, ए डैश और बी डैश का लॉजिक एडिशन, तो एक कॉलम हमने ये वाला ले लिया। ठीक है, तो किसी भी ट्रुथ टेबल को डिज़ाइन करने का यही कॉन्सेप्ट होता है। उसके जो भी इनपुट्स हैं, तो यहाँ पे हमारे इनपुट्स हैं ए एंड बी, उनके हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लेते हैं। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू हमने एक बार 0 0 ले ली, नेक्स्ट टाइम 0 1 ले ली, फिर 1 0 ले ली, फिर 1 1 ले ली। ठीक है, तो इस केस में व्हेन ए इज़ 0, ए जो ए कॉलम है मैंने उसमें एक बार ए डैश अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, ये देखिए ये मेरा ए था, तो इसका ए डैश क्या हो जाएगा 1 1 0 0। सिमिलरली ये बी था 0 1 0 1, तो इसका बी डैश क्या बन जाएगा 1 0 1 0। ठीक है, तो ये बन गया 1 0 1 0। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन दोनों का प्रोडक्ट करा दिया, तो प्रोडक्ट आया 0, ए डॉट भी निकाल लिया हमने स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 कॉलम का प्रोडक्ट ले लिया, तो ये आ गया 0 0 0 1। सिमिलरली नेक्स्ट हमने क्या करा, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो हमें मिल गया 1 1 1 0। नेक्स्ट इज ए डैश प्लस बी डैश। ठीक है, तो ए डैश प्लस बी डैश हम थर्ड और फोर्थ कॉलम को ले लें, ए डैश को ले लें और बी डैश को ले लें, इन दोनों का एडिशन करा लें, तो ए डैश 1 था, बी डैश भी 1 था, तो ए डैश प्लस बी डैश इज़ 1। नेक्स्ट था ए डैश 1 बी डैश 0, ए डैश 1 बी डैश 0, तो ए डैश प्लस बी डैश क्या आ गया 1, ए डैश 0 बी डैश 1, दिस इज ऑल्सो 1। व्हेन बोथ आर 0, ए डैश प्लस बी डैश इज 1। So the De Morgan's first law can also be expressed as not A and B is equal to not A or not B. ये पहला सेट हमने अभी देखा। जो दूसरा डी मॉर्गन का जो दूसरा स्टेटमेंट था वो क्या था, ए प्लस बी होल डैश इज इक्वल्स टू ए डैश डॉट बी डैश। अब इसको भी हम उसी तरह से ट्रुथ टेबल से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे भी देखिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड था, ए और बी तो हमारे 2 वेरिएबल्स हैं ही, फिर हमें ए डैश भी चाहिए था क्योंकि राइट हैंड साइड में ए डैश डॉट बी डैश है, तो इसलिए हमने ए डैश भी फाइंड आउट किया, बी डैश भी फाइंड आउट किया। फिर लेफ्ट हैंड साइड में हमें चाहिए था ए प्लस बी होल डैश, तो हमने ए प्लस बी निकाला और ए प्लस बी का होल डैश फाइंड आउट किया। ठीक है, फिर हमें क्या चाहिए था ए डैश डॉट बी डैश, तो हमने वो भी ले लिया। ठीक है, तो हमें क्या चेक करना है, जो हमारा ए प्लस बी होल डैश है वो और ए डैश बी डैश है वो, इन दोनों कॉलम की वैल्यू एग्जैक्टली सेम आना चाहिए, जो कि हमारी यहाँ पे दिख रही है ट्रुथ टेबल में। ठीक है, लास्ट 2 कॉलम देखिए, ए प्लस बी डैश भी 1 0 0 0 है और ए डैश बी डैश भी क्या आ रहा है 1 0 0। डी मॉर्गन थ्योरम को हमको जिस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं लॉजिक गेट के थ्रू। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो हमारा था ए बी होल डैश इज इक्वल्स टू ए डैश प्लस बी डैश। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए ये हमारा क्या था ए बी डैश है ना, तो हमें क्या करना है एंड ऑपरेटर पे एक नॉट गेट अप्लाई करना है। ठीक है, तो हमने एंड ऑपरेटर ले लिया ये वाला, इसमें हमने लगा दिया एक नॉट गेट, तो हमारा राइट हैंड साइड में क्या मिल रहा है हमें ए डैश प्लस बी डैश, तो हमने लिखा ए, हमने लिखा बी। ठीक है, तो सबसे पहले इसको बनाया इसको यहाँ से हटा देते हैं अपन, इसको हमने बनाया
ए डैश, ठीक है, और ये वाली लाइन से हमें मिलेगा बी डैश। तो इसका जो और इन दोनों का हमने अप्लाई किया एक और गेट में, तो और गेट का आउटपुट हो जाएगा ए डैश प्लस बी डैश। इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, और गेट में हम 2 बबल लगा दें तो ये भी रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है। तो हम इस तरह से भी इसको लगा सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट जो था मेरा, ये देखिए ए प्लस बी होल डैश इक्वल्स टू ए डैश बी डैश। तो ए पहला लेफ्ट हैंड साइड हम देखें तो हमने क्या किया, ए प्लस बी किया। तो ए प्लस बी कब होगा, जब हम और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमने एक यूज़ कर लिया और गेट, ठीक है। जब हमें इसको अप्लाई करना है ए प्लस बी का होल डैश, ये थोड़ा सा गलत है, इसको जो ए प्लस बी डैश है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है इस और गेट का आउटपुट हमें मिलेगा ए प्लस बी, और इस नॉट गेट, इस और गेट के आउटपुट को हम अप्लाई करते हैं नॉट गेट में, तो हमें मिलेगा ए प्लस बी होल डैश, ठीक है। अब हमें राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, ए डैश डॉट बी डैश। तो हमने 2 वेरिएबल ले लिए ए बी, यहाँ पे भी थोड़ा सा गलत लिखा गया है सब जगह पे। तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, ए डैश, और ये मेरा बन गया बी डैश। अब इन दोनों को हमने डॉट प्रोडक्ट करा दिया, तो इसका आउटपुट मुझे मिलेगा ए डैश डॉट बी डैश, ठीक है। वी कैन राइट इट एज एंड गेट विथ 2 बबल्स। तो यहाँ पे मैंने एक बबल से मैंने एक लाइन ली ए, दूसरे से मैंने ली बी, और उसको अगर मैं बबल्ड एंड गेट में अप्लाई कर रही हूँ तो ये मेरा बन जाएगा ए डैश डॉट बी डैश। So it's all about Boolean algebra and Boolean theorems. Now in next class we will discuss, we will solve some simplification of Boolean function.